Good morning, students. We are once again back in a video lecture for class 11th. Children, I am Mahendra Kumar, faculty of Mount Butler Z School for Accounts English PGT. Today we are going to study the new chapter of financial statements, and this is financial statements with adjustments. This is chapter 22 of your book. So before starting the video lecture, I would also like you to open the books. Okay. So now, with adjustments means now there will be certain adjustments on which you need to work. Okay. So the format of all the accounts will be same. Trading P&L balance sheet will be same as in the previous chapter, but now we will be given some additional information related to the question. Like for example, there will be outstanding salary, prepaid expenses, there will be depreciation on assets, there will be provision on debtors. These sort of adjustments will be given in the question and you have to do them. But how you are going to do them? Let's see. So in order to ascertain the true profit and loss of the business for a particular year, it is necessary that all expenses and income related to that year are taken into consideration. For example, if we want to ascertain the net profit for the year ended 31st March and rent for the month of March has not yet been paid, it would be proper to include such rent along with other expenses of the year. Similarly, if it happens that certain income like interest received, dividend, commission, etc. are earned but not received during the year, adjustment for such income must be made in the current year itself so that the profit and loss account may disclose the correct amount of net profit and loss, and balance sheet may present the true financial position of the business. Simply stated, while preparing final accounts, it must be detected whether there is any transaction which has been omitted to be recorded in the books. Number 1. Which have been wrongly recorded in the books. Number 2. And of which only one aspect has been recorded in the books. Entry passed for such transaction are called adjustment entries. Okay. So straight away we're going to start with the question and then you will be able to understand it more clearly, okay, what it is all about. So open to question number 1, children, of your book. Here it is. So the following are the balances extracted from the books of Raghunath Ji as on 31st March 2019. From these balances prepared trading P&L account and balance sheet as at that date. So here are certain items given to you and below the box you are given certain adjustments like closing stock, ये तो पहले भी given होता था, wages 200 and salaries 1200 outstanding, rent for 2 months at the rate of 500 per month is outstanding, depreciate building by 5%, machinery by 10% and prepaid insurance is 200. It's very easy. So the best thing to do such questions is to prepare all the formats in your notebooks and finish off with the adjustment entries. First, you will be preparing the format of trading P&L together and along with it, you will be also preparing the format of balance sheet. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, लिखा, परचेजेस कहाँ आता है, परचेज रिटर्न से डिडक्ट किया, सेल्स कहाँ आता है, सेल्स रिटर्न से डिडक्ट किया, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, क्लोजिंग स्टॉक को हमने बैलेंस शीट में भी लिखा क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पहले से ही बना रखा था. अगर आप सोचेंगे कि पहले ट्रेडिंग और P&L कर लें फिर बैलेंस शीट बाद में बना लेंगे, देयर विल बी ग्रेट डिफिकल्टी फॉर यू टू रीच टू योर आंसर. बैलेंस शीट टैली करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट साथ में ही बनाएं और सबसे पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट करें. तो पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने लिखा 16,000. हमें पता था क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग में आता है तो हमने वहाँ लिखा और एक हमें पता था बैलेंस शीट में आता, हमने वहाँ भी लिखा. ठीक है. उसके बाद वेजेस हमारी आउटस्टैंडिंग है, तो ये बात ध्यान रखो कि आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है, प्रीपेड को माइनस करना है. आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड एंड प्रीपेड विल बी डिडक्टेड. तो वेजेस का घर कहाँ पर है, वेजेस हमें ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो हमने ओरिजिनल वेजेस ट्रायल बैलेंस से लिखा जो गिवन था हमें क्वेश्चन में गिवन था वेजेस 10,000, उसमें हमने आउटस्टैंडिंग जोड़ा. आउटस्टैंडिंग मतलब रह गया है आपकी लायबिलिटी एंड दिस विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑल्सो. These entries, outstanding and prepaid, I have told you in the very beginning when we started with the journal. If you remember. If you don't remember, then it's
गुड, इफ यू रिमेंबर देन इट्स वेरी गुड। ओके, सो नाउ रिमेंबर आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी होती है, प्रीपेड हमेशा एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग को, यहाँ हम लायबिलिटी में शो कर देंगे, हर एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होनी है, ठीक है। ये बैलेंस शीट आपकी पहले से ही प्रिपेयर्ड है। उसके बाद सैलरी, सैलरी का घर कहाँ है, सैलरी हम कहाँ लिखते हैं, सैलरी वी विल बी राइटिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट 2400 एंड आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड, अगेन आउटस्टैंडिंग विल बी पोस्टेड ओवर इन योर लायबिलिटी साइड। फिर अगला एडजस्टमेंट है रेंट फॉर 2 months इज आउटस्टैंडिंग, सो रेंट एंड टैक्सेस हमें ऑलरेडी गिवन है 1800। अब एक महीने का रेंट 500, तो 2 महीने का कितना हो गया 500 इंटू 2 1000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, हमने जोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग क्योंकि ऐड करना है, और हम यहाँ भी लिख देंगे 1000 रुपीज़, ठीक है। आफ्टर दैट डेप्रिशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग का घर कहाँ पर है, बिल्डिंग हम लिखते हैं एसेट साइड, तो हमने एसेट साइड बिल्डिंग लिखी, 5% का डेप्रिशिएशन लगाया, 2500 रुपये आया, दिस 2500 रुपये दीजिए आपका लॉस है, तो आप यहाँ लिख देंगे P&L में टू डेप्रिशिएशन और मशीनरी, सॉरी बिल्डिंग लिखा 2500, तो हर एडजस्टमेंट की डबल एंट्री हो रही, 2500 यहाँ लिखा, 2500 यहाँ लिखा, ये लिखा 2500 और ये भी लिखा 2500, ठीक है। फिर उन्होंने कहा डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, तो मशीनरी हमारी 20,000 की है, हमने 10% लगाया, 2000 आया, उसको भी हमने यहाँ लिखा डेप्रिशिएट ऑन मशीनरी। नाउ प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारा क्या है P&L में आता है, फायर इंश्योरेंस गिवन था हमारा 8000, प्रीपेड को हमें माइनस करना है, प्रीपेड को माइनस करना है, हमने माइनस कर दिया 600 यहाँ लिखा। नाउ वी हैव फिनिश्ड विद द एडजस्टमेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, जो रिमेनिंग एंट्रीज हमारी बच जाती हैं उसको हम पोस्टिंग कर देंगे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में, P&L का P&L में और बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में, ठीक है, जैसे हम विदाउट एडजस्टमेंट में करते थे। जैसे कैपिटल है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ेगा, ड्राइंग माइनस होगा, अगर ड्राइंग नहीं है तो निल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काटने की बजाय आप निल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिट है, डिस्काउंट क्रेडिट है, ये सब टोटल करेंगे, यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे लिखा 35,300 और इससे हमने 23,000 अपना नेट प्रॉफिट निकाला, ठीक है। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट टैली होगी 1 लाख एंड 1 लाख, क्लियर। नाउ वी विल बी गोइंग मूविंग टुवर्ड्स सम मोर एडजस्टमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक, जस्ट पे अटेंशन, उसमें एक नया एडजस्टमेंट आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये प्रोविजन डेटर्स पे लगता है, ठीक है। डेटर्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, गुड, बैड और डाउटफुल, हम प्रोविजन बना के चलते हैं। तो क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, पेज नंबर 22.78 पर है क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन है आपका पूरा, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। उसने क्या बोला, प्राइवेट परचेजेस 4000 हैव बीन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट। प्राइवेट परचेज था, यानी ड्राइंग्स था, गलती से परचेजेस में ऐड हो गया, कोई इशू नहीं उसका। डेबिट लैंड, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 1/2 यानी 2.5%, मशीन मोटर व्हीकल बाय 20%, सैलरी आउटस्टैंडिंग 200, प्रीपेड इंश्योरेंस 200। नाउ ये नया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू मेंटेन 5% डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक का तो हमें पता है 7000, एक ट्रेडिंग में आएगा, एक बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर से हम पूरा तैयार कर लेंगे क्वेश्चन को, बैलेंस शीट बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे और बैलेंस शीट के साथ साथ ट्रेडिंग P&L हम दोनों साथ साथ बनाएंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करेंगे, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। ये हमने परचेज रिटर्न माइनस किया, 64,500 बचा। अच्छा, हमारे कुछ प्राइवेट परचेजेस था, ड्राइंग्स इसको हम बोलेंगे, 4000 वो भी डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये 4000 को हम यहाँ पे कैपिटल में यहाँ पे ले लेंगे, देखो ये ले लिया हमने, 5000 ड्राइंग्स था, 4000 हमारी प्राइवेट परचेज थी, हमने यहाँ ले लिया, तो टोटल ड्राइंग्स हमारी 9000 हो गई, ठीक है। तो डबल एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। नाउ डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का घर कहाँ पर है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिखा कितना 12,000, 12,000 पर 2.5% 300, तो 11,700 बचा है। मोटर व्हीकल पे फिर से डेप लगाएंगे 20%, 10,000 पर 20%, 2,000, 8,000 बाहर रहा। अब ये दोनों को हम कहाँ लिख देंगे P&L में, क्योंकि ये यहीं लिखे जाते हैं, डेबिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिशिएशन ऑन मोटर व्हीकल, ठीक है। उसके बाद हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी का घर कहाँ पे P&L में 9,000 रुपीज़ लिखेंगे, 200 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड, दिस वी हैव स्टडीड इन क्वेश्चन नंबर 1, क्या आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, प्रीपेड माइनस करना है। अच्छा, अब उन्होंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5%, तो डेटर्स हमारे कहाँ लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में। ये जो प्रोविजन लगा रहे हैं इसको हम बोलेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन 1000 रुपीज़, 19 यहाँ पे आ गया। अब जिसका 1000 का दूसरा फैक्ट कहाँ जाएगा, अब P&L में जाएंगे, तो P&L में बैड डेट्स लिखेंगे पहले हम, जो गिवन है हमारी ट्रायल बैलेंस में,
क्वेश्चन में जो बैड डेट्स गिवन हम उसको लिखेंगे, न्यू प्रोविजन जो हमने लगाया है 5% वो हम ऐड कर देंगे, 1500 है, और ओल्ड प्रोविजन जो कि गिवन था 700 उसे माइनस कर देंगे, तो 800 हमारा बचा हुआ। क्लियर? तो देखो 1000 की एक एंट्री यहाँ आ गई और एक एंट्री यहाँ आ गई, डबल एंट्री हो गई। ठीक है, नाउ स्टॉक का तो पता ही है सबको कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखना है एक बार बैलेंस शीट में और एक बार ट्रेडिंग की 7000 रुपीज़। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन। अब उसका टोटलिंग करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। आफ्टर दैट यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट को यहाँ जोड़ेंगे, ड्राइंग माइनस करेंगे, टोटल आ जाएगा हमारा बाय 57,400, 57,400। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन चिल्ड्रन। In the next video we will be continuing with the same chapter and we will be doing question based on manager's commission and further adjustments. Thank you children.